السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ شہزادے کی کہانی شروع کی جائے، ان دو طاقتور بادشاہوں کی داستان جاننا ضروری ہے، جن میں سے ہر ایک رات کو کسی عورت سے شادی کرتا، صبح ہونے پر اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ایسا کیوں تھا؟ اگر آپ بادشاہ کے درباریوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ان کی بیویوں نے ان سے بے وفائی کی تھی، اس لیے۔ کہانی شروع ہوتی ہے چھوٹے بھائی سمرقند کے بادشاہ شاہ زمان سے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے غلام کے ساتھ دیکھا اور اسی لمحے تلوار کے ایک ہی وار سے دونوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا بھائی شہریار، جس کی حکومت ہندوستان سے چین تک پھیلی ہوئی تھی، اس سے عظیم بادشاہ تھا، چنانچہ اس سے بھی بڑا المیہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے باغ میں اپنی ملکہ اور 10 داشتاؤں کو غلاموں کے ساتھ مشغول دیکھا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں عورتوں کے بغض سے پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ شہریار اپنے تخت پر بیٹھا اور وزیر اعظم کو ملکہ قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام داشتاؤں اور غلاموں کے بھی سر قلم کروا دیے جنہیں اس نے باغ میں عریاں رقص کرتے دیکھا تھا۔ لیکن ان سب کے بعد بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر کو ایک دلہن لانے کے لیے کہا اور صبح جلاد کے ہاتھوں اس غریب کا سر قلم کروا دیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ اس کی عوام نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا، بادشاہ پر لعنت بھیجی اور خدا سے اس کی تباہی کی دعائیں مانگی۔ عورتیں مشتعل ہو گئیں، مائیں فریاد کرنے لگیں، والدین اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے کوچ کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب وہاں ایک بھی جوان لڑکی نہ بچی، سوائے 2 کے۔ وہ دونوں وزیر اعظم کی بیٹیاں تھیں، شہزادی اور دنیا زاد۔ کہانی کا یہ رخ آپ بادشاہوں خوش آمدیوں کے منہ سے سنیں گے جن کا غلبہ تمام درباروں پر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کہانی کا دوسرا رخ سننا ہے تو ان خاندانوں سے سنیں جن کی بیٹیاں بادشاہ کی خونی پیاس کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ دونوں بادشاہ دراصل شادی کے قابل ہی نہ تھے۔ انہیں کسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تخت و تاج کے ایک وارث کے لیے عوام کے بے پناہ دباؤ میں آ کر انہوں نے شادی کی حامی بھر لی، یہ سوچ کر کہ انہیں ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو ان کا راز افشا نہ کرے۔ انہیں ایسی عورت مل بھی جاتی، کیونکہ اکثر عورتوں کی شادی ایسے مردوں سے ہو جاتی ہے اور وہ تمام عمر اپنے خامدوں کی جوان مردی کی تعریفیں کرتے گزار دیتی ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ صرف نامرد نہیں تھے، ساتھ ہی بزدل بھی تھے، اور چونکہ وہ خود کبھی کسی کے ساتھ وفادار نہیں رہے تھے، چنانچہ وہ اپنی بیویوں پر بھی بھروسہ نہ کر سکے، اور بالآخر انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا جو ان جیسے بزدل مرد اپناتے ہیں، تشدد کا راستہ۔ وہ اپنی آرام گاہ سے باہر تو بادشاہ تھے، مگر اندر چوہوں سے بھی بدتر تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز کسی پر کھلے، چنانچہ انہوں نے اپنی ہر دلہن کو جلاد کی تلوار کے وار سے خاموش کروا دیا۔ 3 سال تک یہی سب چلتا رہا، اور پھر ایک دن انہیں شہزادی کی شکل میں اپنا مقابل مل ہی گیا۔ وہ خوبصورت تھی، ہوشیار تھی، اس نے کتابیں پڑھی تھیں، اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جو کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ تھی طاقت، ایک عورت کی نرم و نازک طاقت۔ اس کی بہن دنیا زاد بھی اسی کی طرح ہوشیار اور خوبصورت تھی، اور اپنی بہن کی طرح عورت کی طاقت سے واقف تھی اور اس کا استعمال بھی خوب جانتی تھی۔ ان دونوں نے مل کر بادشاہ شہریار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا باپ وزیر اعظم بھی ایک مرد ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک طاقت آخر چیز کیا ہے، اور اس سے ایک زبردست بادشاہ کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جب بادشاہ نے اسے اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کرنے کا اشارہ دیا تو وزیر کے پاس آسان ترین راستہ یہی تھا کہ سلطنت سے فرار ہو جائے، لیکن شہزادی اس آزمائش کے لیے تیار تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسی دن سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جب سے بادشاہ نے اپنی خامی چھپانے کے لیے معصوم عورتوں کا خون بہانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیں، یا تو میں فتح یاب ہو کر زندہ رہوں گی یا پھر مرنے سے پہلے اسے تباہ کر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی کہ کیا مانگ رہی ہو، وزیر نے کہا۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو موت کی جانب جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ماں سے کہو سامان باندھے، ہم بھی دوسروں کی طرح یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ نہیں، میرا خون ان سینکڑوں مظلوم عورتوں سے قیمتی نہیں
जो इस पागल बादशाह की अना पर कुर्बान कर दी गईं। शहजादी ने जवाब दिया, मैं भी शायद इन्हीं की तरह मारी जाऊं, लेकिन इससे पहले मैं इस मकरूह खेल को खत्म करके जाऊंगी। तुम बादशाह के गजब से वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उसका वजीर हूँ। वजीर आजम ने कहा, मैं बादशाह के गजब से तो आशना नहीं, लेकिन एक औरत की जहानत से वाकिफ हूँ। शहजादी ने जवाब दिया, मुझे इस नेक काम के लिए तैयार करें। वो मुझे मार सकता है तो मार दे, मैं एक शहीद की मौत मरूंगी। इससे पहले कि हम कहानी आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। एक औरत की नर्म और नाजुक ताकत के आगे हर मर्द नामर्द बन जाता है। ये जहनी कमजोरी है, जिस्मानी नहीं। और तमाम मर्दों में ये कमजोरी मौजूद होती है। शादी के लिए शानदार तैयारियां की गईं। शहजादी का लिबास सुनहरे धागों से तैयार किया गया। पूरी सल्तनत और दुनिया भर से चुनकर अतर उसकी खिदमत में पेश किए गए। उसे मजीद खूबसूरत बनाने के लिए कई दिनों तक तरह तरह की जड़ी बूटियां, तेल और महलूल उसके जिस्म पर मले गए। मेहंदी के खूबसूरत और नाजुक नक्श से उसके हाथ और पैर सजाए गए। शादी की रात दुल्हन की सेज दूर दराज के बागों से लाए गए फूलों से सजाई गई। कमरे के चारों कोनों और बिस्तर के नीचे खुशबूदार गाव लोबान जलाए गए। लेकिन आप ये ना समझें कि ये सब बादशाह के हुक्म पर हो रहा था। वो शादी की रात से ज्यादा उसके बाद आने वाली सुबह की तैयारियों में दिलचस्पी रखता था। दुल्हन का सर कलम करने के लिए सबसे वजनी और तेज तलवार का इंतखाब किया गया और उसका खून जमा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन फर्श पर रखे गए। बादशाह बजाते खुद हर दुल्हन के लिए जल्लाद का इंतखाब करता। जितनी ज्यादा खूबसूरत दुल्हन होती, जल्लाद उतना ही ज्यादा खूनखार होता। बादशाह ये चाहता था कि उसकी आवाम सिर्फ ये याद रखे कि किस तरह पहली मलका ने बादशाह को धोखा दिया, किस तरह वो बादशाह की गैर मौजूदगी में एक गुलाम के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती थी। उसने अपने पागलपन को एक एहसान का तासुर देने की कोशिश की। वो चाहता था लोग ये समझें कि रोजाना एक कुंवारी लड़की से शादी करके और दूसरी सुबह उसे कत्ल करवा कर वो इन सबको एक बहुत बड़ी बुराई से बचा रहा है। वो न सिर्फ ये चाहता था कि उस जुल्म के तमाम निशानात मिटाए जाएं, बल्कि उसने ये भी यकीनी बना दिया कि बाहर की दुनिया को महल के अंदर होने वाली कार्रवाइयों की भिनक भी ना पड़े। इस तरह दुल्हनों को आरामगाह से बाहर घसीट कर निकाला जाता है। इस तरह वो अपनी जिंदगी बख्शने के लिए गिड़गिड़ाती हैं। इस तरह ज़िबा हो जाने के बाद उनके जिस्म जिंदगी की तरफ लौटने के लिए देर तक फड़फड़ाते रहते हैं। इस तरह उसके पास की जमीन और बाज़ औक़ात बादशाह का लिबास भी खून से सुर्ख हो जाते। लेकिन शहजादी एक जिद्दी और समझदार लड़की थी। बादशाह भी जानता था कि शहजादी जिद्दी और जुर्रतमंद है। उसके जासूसों ने बताया था कि वजीर आजम अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुल्क से भाग रहा था, मगर शहजादी ने उसे रोक दिया। चुनांचे बादशाह ने भी शहजादी को जेर करने के लिए एक दो चालें तैयार कर ली। हुजरा अरोसी में दाखिल होते ही बादशाह ने जलते हुए लोबान की तरफ इशारा करके पूछा, ये सब क्या है? जज्बात की खुशबू आलीजा, शहजादी ने जवाब दिया। मुझे खून की बू ज्यादा पसंद है, बादशाह ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। यहाँ इतने फूल क्यों सजाए गए हैं? ये चाहत के फूल हैं आलीजा, शहजादी बोली। ये सुनकर बादशाह बागीचे की खिड़की की तरफ गया तो उसे खोलकर खड़ा हो गया। वहां एक खूंखार शख्स तेज रोशनी में खड़ा तलवार तेज कर रहा था। ये देख रही हो तुम? बादशाह ने पूछा। आज की रात मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया है आलीजा, शहजादी ने कहा। कल सुबह मैं दूसरी बातों पर तवज्जो दूंगी। अब कोई कल नहीं आएगी, बादशाह ने कहा। सूरज बादलों के पीछे भी चमकता है, कल सुबह जरूर आएगी। शहजादी बहुत पुरउम्मीद थी। देखते हैं, ये कहते हुए बादशाह ने दरवाजा खोला। एक गुलाम ने छोटी सी बोरी कमरे में फेंकी। बोरी के अंदर कोई चीज तकलीफ और गुस्से से चिल्लाने लगी। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, उसमें से एक बिल्ली निकलकर खिड़की की तरफ भागी। लेकिन इससे पहले कि वो खिड़की तक पहुंचती, बादशाह ने तलवार के एक ही वार से उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर शहजादी के चेहरे के सामने तलवार लहराते हुए बोला, मुझे परेशान किए जाना पसंद नहीं। ये तो एक बिल्ला था, अगर कोई बिल्ली होती तो कभी यूं भागने की कोशिश ना करती, शहजादी ने मुस्कुराकर कहा। मुस्कुराहट देखकर बादशाह घबरा गया। उसने तलवार म्यान में डाली और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। काफी देर यूं ही गुजर गई। फिर एक कुर्सी पर बैठकर उसने शहजादी से पानी लाने को कहा। जी हजूरे वाला,
ये कहते हुए उसने बादशाह की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। फिर बोली, पानी बिल्कुल एक मरहम की तरह है, क्योंकि इसमें तब्दील होने की सलाहियत है, बिल्कुल एक औरत की तरह। तब्दील होने की सलाहियत औरत में नहीं मर्द में होती है। औरत के पास कोई ताकत नहीं होती। बादशाह बिगड़ गया। अगर आपके ख्याल में पानी बेबस है, तो फिर औरत भी बेबस होती होगी। शहजादी फिर मुस्कुराई। इसका सर कलम करने से पहले मैं दो काम जरूर करूंगा। एक तो इससे कबूल करवाऊंगा कि औरत कमजोर होती है। बादशाह को भी एहसास हो गया कि इसके पास लड़की को डराने के लिए कोई हरबा नहीं। चुनांचे वो कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद शब ख्वाबी के लिबास में वापस आया। लेकिन वो अपनी तलवार साथ लाना नहीं भूला था। साबित करो कि एक औरत मर्द से ज्यादा समझदार होती है, वरना, उसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आलीजा, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मौत से ज्यादा बुरी चीज और कुछ नहीं। मेरे पास अपना नुक्ता साबित करने के लिए 1001 कहानियां हैं। वो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मुझे कहानियां सुनाना पसंद है। शहजादी बोली। जो भी है शुरू करो। बादशाह ने इशारा किया। लेकिन एक मसला है आलीजा, शहजादी ने कहा। और वो मसला क्या है? बादशाह ने पूछा। मैं कहानी उस वक्त तक नहीं सुना सकती जब तक मेरी छोटी बहन साथ ना हो, शहजादी ने बताया। चुनाचे फौरन दुनियाजाद को बुलवाया गया। दुनियाजाद आई और उसने अदब के साथ फर्शी सलाम किया, जैसे तमाम मर्द और औरतों को करना होता है, और फिर बादशाह के कदमों में बैठ गई। बास मर्दों को अच्छा लगता है जब औरतें उनके कदमों के पास बैठती हैं। दुनियाजाद के पास बैठने के साथ ही शहजादी ने अपनी कहानी शुरू कर दी। बगदाद के करीब एक शहर का सरदार ताजिर अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों से वसूली करने निकला। दोपहर के वक्त वो एक नहर के किनारे रुक गया। घोड़े को दरख्त से बांधकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करके उसने कुछ खजूरें निकाली और उन्हें भी खाने लगा। खाने के बाद उसने बीज जोर से फेंके कि अचानक एक बड़ा सा खौफनाक उफरियत हाथ में तलवार लिए नमूदार हुआ। तुमने मेरे बेटे की आंख फोड़ दी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, उफरियत ने ललकारा। क्योंकि शहजादी दास्तान गोई में माहिर थी, चुनाचे ताजिर और उफरियत की कहानी आगे 3 शेखों में चली गई, जिनमें से एक के पास गजाल था, दूसरे के पास 2 शिकारी कुत्ते और तीसरे के पास एक खच्चर था, और उनसे आगे मछेरे और अजनबी की कहानी तक। शहजादी ने जब ये कहानियां 1000 रातों में पूरी की, तो बादशाह बहुत खुश हुआ। उसके दिल में औरतों के मुतालिक जो बदगुमानियां पैदा हो गई थी, दूर हो गईं, और आइंदा के लिए उसने तौबा कर ली, हर रोज नई शादी करके पहली को कत्ल करवाने से। और उसे शहजादी से दिली मोहब्बत हो गई। वो इतना चाहने लगा था कि अहम फैसला भी उसके मशवरे के बिना नहीं करता था। वजीर आजम का भी बादशाह ने शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी लड़की की वजह से हम इस गुनाह से बच गए।